Let us solve question number 22nd. Refer to example 13. See, for this, whatever illustrations are given in textbook, we have to read question from illustration 13 of textbook, which I have written over here. Two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice? Say, actually this question is from the illustration. Once again, two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Complete the following table. A student argues that there are 11 possible outcomes from 2 to 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. See, about the sum of coin and, or the sum related with the coin and dice, I had explained in previous video. Whenever sum related to coin and dice are there, you have to find out total trial by applying this formula. It is side raised to. So whenever sum related to coin or dice is there, in the base it will be side of the coin. If it is coin, then side will be 2. If it is dice, the side will be 6. And you have to keep in mind its power. Its power can be number of coin. In this case, it cannot be number of coin because this sum is related with the dice. Number of dice. Check it out. How many dice we have? We have 2 dice. One blue and one grey. So total trial will be 6 raised to 2. 6 into 6 equals to 36. Here we want to write total possible outcomes. Total possible outcome, it also called sample space. Let me explain how. See, we are having 2 dice, one blue and one grey. On the blue color dice we are having number from 1 to 6. On grey color dice we are having number 1 to 6. If we throw these both the dice, if one number appear on blue dice, then on the grey dice it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we can get 6 outcomes. That is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Check it out, this line. Okay. Suppose अब ब्लू कलर के डाइस पे 2 आता है, तो ग्रे कलर के डाइस पे वापिस 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है. तो सेकंड लाइन विल बी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6. Same way, on the blue color dice we are having number 3. Then on the grey color dice we can have any number from 1 to 6. So outcome will be 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6. Same way, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. And same way at last 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So these are the sample space total possible outcomes. As we have written total trial 36, so these are the 36 trials. जब भी 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो 36 में से कुछ भी आ सकता है. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इवेंट सम ऑन 2 डाइस. अब हमें क्या करना है कि 2 डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर उन्होंने फाइंड करके रखी हुई है 1 by 36. अब चेक करते हैं ये कैसे आया. चलो अब मुझे बताओ ये सब में से कि डाइस के ऊपर के जो नंबर है वो उनका अगर हम सम करें तो 2 कितने टाइम्स आता है. देखो ये 1 + 1 करूँगा तो 2, फिर 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7. वैसे ही अगर 2 + 1 3, 2 + 2 4, ऐसे में सम करते जाऊँगा 2 से ग्रेटर ही आने वाला है. लेकिन 2 कितनी टाइम आया? 1 + 1 2, सिर्फ 1 टाइम. सो नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब ये सारे के सारे ट्रायल्स. हाउ मेनी आर देयर? 36. दैट्स व्हाई इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 36. Same way we have to find out sum on the number of 2 dice 3.
probability of getting sum of number on 2 dice 3. So it is very lengthy process to sum up these all. So for that we are having one shortcut trick. देखो हमें सबकी probability find करनी है, सम 3 आने की, सम 4 आने की, सम 5, सम 6 से लेके 11 तक. तो क्या इसके लिए हम क्या सारे के सम चेक करते रहेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. सो इससे बेटर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. देखो आपको ये याद रखना है, सम और ए नंबर ऑफ ट्रायल. अब सम चेक करो, यहाँ पर मिनिमम सम कितना हो सकता है. जो फर्स्ट आउटकम है दैट शोज मिनिमम सम 1 + 1 2. बाकी सारे का नंबर का सम 2 से ज़्यादा ही आएगा. और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम, एड अप लास्ट आउटकम 6 + 6 12. So we can have minimum sum 2 and maximum 12. So here we can have sum from 2 to 12. So let us write all 2, 3, 4, 5, 6 and 12. Okay. Now let us write number of trials. See, number of trials, one trick is there कि डाइस पे टोटल कितने नंबर्स होते हैं 6. तो पहले 1 2 लेके 6 तक नंबर लिख डालो, 1 2 3 5 6. अब आगे 7 8 9 10 नहीं लिख सकता क्योंकि डाइस के ऊपर 7 8 9 10 11 12 नंबर नहीं होते, 1 to 6 ही होते हैं. और यहाँ पर वही नंबर लिख सकते हैं. तो अब क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे, 6 से उल्टा जाओ, 5 4 3 2 1. ओके. एक बात आपको याद रखनी है, 6 2 टाइम नहीं आना चाहिए. एक बार फिर से मैं समझा दूँ. यहाँ सम लिखना है तो यहाँ चेक करें अगर हम, तो मिनिमम सम कितना हो सकता है 1 + 1 2 and maximum sum last outcome which is 6 + 6 12. So write down sum 2 to 12 and here we going to write number of the dice 1 2 3 4 5 6 then reverse 5 4 3 2 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाइस के नंबर का सम करेंगे, अगर 2 है वो कितनी बार आता है, 1 टाइम, जो अभी हमने देखा. डाइस के ऊपर का अगर नंबर का सम अगर 3 अगर हम ले तो कितनी बार आएगा, वो 2 टाइम. तो चेक करते हैं कि सम जो 3 है वो 2 टाइम आता है. देखो 1 + 1 ये तो 2 हुआ, ये 1 + 2 3 एक ही हो गया, 1 + 3 4 ये 5 हुआ, ये 6 ये 7 हो गया, 2 + 1 ये वापस 3 हुआ. तो सिर्फ ये 2 ही ऐसे हैं कि जिनके ऊपर का नंबर का सम हम करेंगे तो 3 आएगा. तो मतलब वेरीफाई हो गया, सम 3 कितनी बार आया, 2 टाइम. वैसे ही डाइस के ऊपर के नंबर का सम 4 कितनी बार आएगा, 3 टाइम. देखो चलो ये भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ. 1 + 3 सम करो 4, ठीक है. 2 + 2 4, 3 + 1 4. अब इस ये 3 के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा कि जिसके नंबर का सम 4 हो, ठीक है. तो मतलब जब भी डाइस के रिलेटेड में सम अगर आए, सम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, सो जस्ट मेक दिस टेबल. ओके, इट विल बी इजी फॉर यू. आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. ओके. लेट अस सॉल्व द सम. अब चेक करना, क्वेश्चन यहाँ से लेने और यहाँ हमारे आंसर्स है. चलो चेक करते हैं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 3. तो सम चेक करो, 3 क्वेश्चन, उसका आंसर 2. So this will be number of trial 2 upon total number of trial will be 36. So 2 1s are 2 upon 2 18s are 36. Okay. Now getting sum 4. देखो sum 4 इक्वेशन हुआ, उसका आंसर क्या हुआ, 3. So number of trial 3 upon total 36. Let us reduce 3 1s are and 3 12s are. Okay. Now getting sum 5, it is question, its answer is 4. So here 4 upon 36. So 4 1s are and 4 9s are. Same way getting sum 6, question, its answer is 5. 5 number of trial total 36. We cannot reduce further as it is. Getting sum 7, it is question, its answer is 6 upon total 36. So 6 1s are upon 6 6s are 36. Getting sum 9, it is question, answer 4. 4 upon total 36. It can be reduced, 4 1s are 4
4 9s are 36. Now getting some 10, it is question, answer is 3. So 3 upon total 36, 3 1s are and 3 12s are 36. Now getting some 11, it is question, here answer is 2. Total 36. So 2 1s are and 2 18s are. Okay, so here we are having all the probability of getting sum from 3 to 11. So here we can fill the table. देखो ये मैंने पूरा टेबल फिल कर दिया. Okay, from the answers. So here first question is over. See, one more question is asked over there. A student argues that there are 11 possible outcomes 2 to 12. ठीक है, अभी हमने देखा कि सम है मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम 12, यानी सम 2 से 12 तक आ सकता है. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के सम ही आ रहे हैं. तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 हो सकती है? देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे सम आने की हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ये सबके आंसर 1/11 हो सकते हैं. ठीक है, हो सकते हैं? नहीं हो सकते. कहाँ से होंगे? देखो अपने फाइंड किया है, यहाँ पर किसी का भी आंसर 1/11 नहीं है. ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 1/11 तो कब हो सकता है कि जब सम 2 एक ही बार आए, सम 3 भी वन टाइम आए, सम 4 भी वन टाइम आए, सम 5 भी वन टाइम आए. लेकिन ऐसा नहीं है. देखो सम 2 वन टाइम आ रहा है नो डाउट, लेकिन सम 3 तो कितनी बार आता है? 2 टाइम आता है. सम 4 3 टाइम आता है. तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है. इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है. इक्वली लाइकली आउटकम कब हो सकता है? जब 2 भी वन टाइम आए, 3 भी वन टाइम आए, 4 भी वन टाइम आए, 5 और सारे के सारे वन टाइम आए. तो उसका मतलब 1/11 हम इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते. और वैसे आंसर में आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ एक्सप्लेन कर चुके हो कि सम 3 से लेके 11 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है. तो सिंपली विल राइट इन द आंसर कि आई डू नॉट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट गिवन. ये जस्टिफिकेशन है ऑलरेडी गिवन, बीइंग गिवन इन द पार्ट 1. यहाँ हम जस्टिफिकेशन दे चुके हैं. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. इट इज रीड a game consists of tossing a coin, tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads of or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. Okay, so this sum is related with the coin. As I told you, whenever sum is related with the coin or dice, we'll find total trial by applying this formula. Okay, चलो बताओ मुझे. Here we are talking about the coin. So how many sides the coin have? 2. So base will be 2. अब इसका जो पावर है, देखो नंबर ऑफ कॉइन, यहाँ पर कितना कॉइन है? 1 रुपये कॉइन, एक ही कॉइन है. इसका पावर कभी 1 नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा. वो आपको आगे मालूम चलेगा. देखो नंबर ऑफ डाइस यहाँ तो रिलेटेड नहीं है. नंबर ऑफ टाइम रोल, डाइस को रोल किया जाता है, यहाँ तो कॉइन है. नंबर ऑफ टाइम टॉस्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने कॉइन को कितनी टाइम टॉस किया है? 3 टाइम. सो बेस विल बी साइड दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ टाइम टॉस दैट इज 3. सो 2 into 2 into 2. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 8. हियर वी विल राइट सैम्पल स्पेस, यानी कौन से 8 आउटकम यहाँ हो सकते हैं. ओके, ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी कॉइन से रिलेटेड आता है तो टोटल ट्रायल फाइंड आउट करो. अब क्या करना है? उसका हाफ ऑफ 8 इज 4. सो राइट 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल. ओके, अब 4 का वापिस आप करो 2. सो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल. समझ रहे हो? वापिस 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल. 2 का वापिस आप करो 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल.
Here also one time head, one time tail, one time head, one time tail. This you can do only whenever sum is given related to the coin. चलो once again एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको. See, total trial 8, beginning से half करना है, half of 8 4, so 4 time head and 4 time tail. Now half of 4, it will be 2, so 2 time head, 2 time tail. Here also 2 time head, 2 time tail. Okay, now half of 2 1, 1 time head, 1 time tail, 1 time head, 1 time tail. Same here, head tail, head tail. Okay, now so here we are having total 8 trials, that means 8 outcomes. Okay, what the question is, find probability that Hanif will lose the game. यानी हनीफ गेम हार जाएगा. फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. हनीफ विन इफ ऑल द टॉस इज गिवन द सेम रिजल्ट. हनीफ कब जीत सकता है कि तीनों के तीनों बार कॉइन के ऊपर सेम साइड आए, यानी तीनों के तीनों टाइम हेड आए या तो तीनों के तीनों टाइम टेल आए, तो ही हनीफ जीत सकता है. लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है, हनीफ विल लूज द गेम. तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हनीफ हार जाएगा. देखो, ये 3H आएगी तो हनीफ जीतेगा, ये 3 टेल आएगा तो भी हनीफ जीतेगा. तो हनीफ कब हारेगा, जब 2 हेड टेल आया, यानी जब तीनों बार सेम साइड नहीं आती है तब चेक करो कितनी बार सेम साइड नहीं आती है. 1 2 3 4 5 6. तो हनीफ विल लूज द गेम. So here Hanif will lose the game. Okay, when he will lose the game, if he will not get same side on 3 times. Okay, that means 6 times are there in which he is not getting same side. 1 2 3 4 5 6. So your number of trial will be 6 upon total number of trial, it is 8. So 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 3 by 4 is our answer. Let us move to next sum. Question number 24. Question number 24 is, a dice is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least one time. Okay, so we know very well in sum related with your dice or coin, we are having formula total trial side raised to number of coin, dice rolled or tossed. So this sum is related with the dice. Okay, so the total, how many sides the dice have? 6. So base will be 6 at the power number of dice. Here तो we are having only one dice, तो हमें आगे देखना पड़ेगा number of time rolled. हम डाइस को कितने टाइम थ्रो या रोल कर रहे हैं? 2 टाइम. सो पावर विल बी 2. याद रखना, पावर कुछ ना कुछ होगा, या तो 2 या तो 3, ये कभी 1 नहीं हो सकता. 6 × 6 36, ये हमने आगे भी देखा था. सो टोटल 36 आउटकम विल बी देयर. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 6 1 2 6 6. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वी वांट, 5 will not come up either side. So event A will be 5 will not come up either side. यानी हम 2 डाइस को 2 बार टॉस कर रहे हैं, लेकिन दोनों बार 5 नहीं आना चाहिए. तो आप चेक करो इसमें से ऐसे कितने आउटकम है कि जहाँ पर 5 नहीं आ रहा है. सिंपल, वी डू वन थिंग, वॉट एवर आउटकम हैविंग 5 दैट विल रिमूव. चेक इट आउट. देखो यहाँ पर कहीं 5 नहीं, हियर वी आर हैविंग 5, यहाँ 5 सेकंड डाइस पे आया, यहाँ पर भी 5 सेकंड डाइस पे आया, यहाँ पर भी 5 सेकंड डाइस पे आया, और ये तो पूरे की पूरी रो में फर्स्ट डाइस पे 5 है. तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर डाइस पे 5 आ रहा है. बट वॉट यू वॉन्ट, 5 विल नॉट कम इधर साइड. सो काउंट रेस्ट ऑफ ऑल, यानी 1 2 3, इससे बेटर है टोटल 36 है.
5 कितने टाइम आ रहा है चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 11 टाइम आ रहा है, तो बाकी जो 25 बचा उतने टाइम 5 नहीं आ रहा है. दैट थिंग ओनली वी वांट ना, 5 विल नॉट कम अप इधर साइड, तो 5 कितनी टाइम नहीं आ रहा है 25. सो नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 36. वी कैन नॉट रिड्यूस फर्दर, so 25 by 36 is our answer. Okay, now event B, 5 will come at least one time. देखो मैंने at least का मतलब समझाया था, लिस्ट का मतलब कम होता है, लेकिन हम अपोजिट समझ के करना है. कम का अपोजिट ज़्यादा यानी मोर. तो इन दिस वे विल अंडरस्टैंड कि 5 कम अप वन टाइम और मोर देन वन टाइम. दैट मीन्स 5 शुड कम 1 और 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 5 या तो 1 टाइम आ सकता है, या तो देखो ये सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें 5 2 टाइम आया. सो हियर इवेंट बी इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट आउटकम वेयर 5 कम्स 1 टाइम और मोर देन 1 टाइम. वो तो ऑलरेडी हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है. देखो ये अंडरलाइन किया है, उसी में सिर्फ 5 1 या 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, बाकी किसी में भी 5 नहीं आ रहा है. तो 5 कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स. So here how many time 5 appear, 11 times, so it will be number of trial, total number of trial 36. Still we cannot reduce further, so it is our answer. Okay, go through it. Let us move to next question, which is 25th, last question of this chapter. Which of the following argument are correct and which are not correct, give reason for your answer. First is, if two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail or 1 of each. Therefore for each of these outcome the probability is 1/3. देखो एक बात याद रखो, यहाँ पर टोटल कितने इवेंट होने बताइए, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, यानी 1 2 3, तो टोटल नीचे 3 हो गया और ऊपर 1. तो ये कब हो सकता है कि जब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो. अभी मैंने आपको मतलब समझाया था इक्वली लाइकली का मतलब, कि इक्वली लाइकली तभी हो सकता है जब 2 हेड भी 1 टाइम आए, 2 टेल भी 1 टाइम आए, और 1 ऑफ ईच मतलब हेड और टेल वो भी 1 टाइम ही आए, तभी उसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं. इक्वली लाइकली आउटकम मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी 1 टाइम ही आनी चाहिए. ठीक है, तो हम चेक करते हैं. मैंने अभी बताया इट इज़ रिलेटिव विद द कॉइन, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे. साइड कितनी होती है कॉइन की, 2. अब हम कितने कॉइन ले रहे हैं, 2, सो 2 × 4. हियर वी शुड हैव 4 आउटकम्स. एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर इट इज़ रिलेटिव विद द कॉइन वी आर डूइंग हाफ. चलो 4 का हाफ करो, कितना, 2. सो राइट 2 टाइम हेड एंड 2 टाइम टेल. ओके, 2 का हाफ करो, it will be 1 time head 1 time tail, here 1 time head 1 time tail. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. हो गए देखो हमारे 4, 1 2 3 4. अब चेक करो, देखो 2 हेड बराबर 1 टाइम आ रहा है, करेक्ट. 2 टेल दैट ऑल्सो कम 1 टाइम, बट 1 ऑफ ईच यानी हेड टेल वो 2 टाइम आ रहे हैं. देख रहे हैं आप लोग, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. So its probability cannot be 1/3. So it is incorrect. So answer can be written in this way. We can classify the outcome like this, but they are not then equally likely. इतना लंबा हम डिफिकल्ट नहीं लिखेंगे. Simply we'll write it is not equally likely. अब रीजन लिखेंगे क्यों. रीज़न इज दैट 1 ऑफ ईच कैन रिजल्ट इनटू 2 ways. ये उन्होंने 1 ऑफ ईच लिखा हुआ है, वो सिर्फ 1 बार नहीं आ रहा है, वो 2 टाइम आ रहा है. ठीक है, यानी वो 2 टाइम कौन सा हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो कौन सा आ रहा है 2 टाइम, हेड टेल एंड टेल हेड. सो
दिस मेक्स इट ट्वाइस एज लाइकली एज 2 हेड्स. ठीक है, इतना भी लंबा नहीं लिखेंगे, इतना ही हम लिखेंगे, इनफ है. ठीक है, ओके. सो ओनली दिस रीजन विल बी इट इज नॉट इक्वली लाइकली. रीजन क्यों इक्वली लाइकली नहीं है? बिकॉज हेड एंड टेल कम्स 2 टाइम. ओके, रीड सेकंड. इफ ए डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. चलो मुझे बताओ, डाइस को हम टॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी नंबर आएगा, ऑड नंबर सपोज आया. ठीक है, तो ऑड नंबर कोई भी आया तो 1 टाइम आएगा कि एक से ज़्यादा बार आ सकता है. जैसे कि कोई भी ऑड नंबर में ले लूँ, 1 ले लूँ, डाइस को रोल किया तो डाइस के ऊपर 1 एक बार होता है कि एक से ज़्यादा बार होता है? 1 टाइम. फिर अगर मैं 3 इवन नंबर ले लूँ, वो भी डाइस पे कितने टाइम होता है? 1 टाइम. 5 वो भी 1 टाइम. अब मैं इवन नंबर ले लूँ, इवन नंबर 2 4 6, 2 भी डाइस से 1 टाइम ही होता है, 4 भी 1 टाइम होता है, 6 भी 1 टाइम होता है. तो यहाँ पर हमें जो दिया है ऑड और इवन, ये दोनों चांसेस सिर्फ 1 टाइम ही आते हैं. दैट्स वाई इट इज इक्वली लाइकली. एंड डाइस को रोल करोगे या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन, ये दो में से एक ही चीज आ सकती है. सो टोटल ट्रायल विल बी 2. और ऑड भी 1 टाइम आता है, इवन भी 1 टाइम आता है, तो नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 1. सो दिस इज करेक्ट. सो करेक्ट, द 2 आउटकम कंसिडर in the question are equally likely. So our answer is correct. Okay, so here our chapter is over. Thank you.